اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 14ویں مجلس اسی سال ماہ سفر کی 27ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی، عشق و عقل کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ان کے درمیان تضاد ہے، علماء اہل عقل ہیں اور درویش لوگ اہل عشق۔ علماء کی عقل عشق پر غالب ہے اور اس قوم کا عشق عقل پر غالب ہے، مگر انبیاء میں دونوں کیفیات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد غلبہ عشق کی صفت میں یہ شعر زبان مبارک سے پڑھا: عقل کے ہاں عشق کی کوئی سنوائی نہیں، جلدی سے اس کے کان میں روئی ٹھونس دو۔ اس اونٹ نے جلاہے کے دل کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہا تھا؟ اسی معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ علی کھوکھری نامی ایک شخص ملتان میں تھے۔ وہ ایسے کسی آدمی سے اعتقاد نہیں رکھتے جس کے پاس عشق و درد نہ ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی زاہد اور عبادت گزار کیوں نہ ہو، اور کہتے کہ فلاں آدمی کچھ نہیں ہے، اس کے پاس عشق تو ہے نہیں۔ اس کی زبان سے صحیح لفظ تک نہ نکلتا تھا، عشق کو اشک کہتا تھا۔ اسی بات کی مناسبت سے یہ بھی فرمایا کہ یحییٰ معاذ رازی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ محبت کا ایک ذرہ تمام انسانوں اور پریوں کی طاعت سے افضل ہے۔ اسی کے مناسب حال یہ بات فرمائی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز بارہا کسی کو دعا دیتے کہ خدائے عز و جل تجھے درد عطا فرمائے۔ وہ شخص حیران ہوتا کہ یہ کیا دعا ہے۔ اب پتا چلا کہ وہ کیا دعا تھی۔ پھر شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی حکایت نکلی۔ ارشاد ہوا کہ جس زمانے میں وہ بدایوں پہنچے، ایک روز گھر کی دہلیز پر بیٹھے تھے کہ ایک دہی فروش دہی کی مٹکی سر پر رکھے اس گھر کے سامنے سے گزرا، اور یہ دہی بیچنے والا موسیٰ کا رہنے والا تھا جو بدایوں کے قریب ہے۔ اس علاقے کو کیٹر کہتے تھے اور وہاں راہزن بہت ہوتے تھے، اور یہ دہی فروش بھی ان راستہ لوٹنے والوں میں سے ایک تھا۔ الغرض جب اس کی نظر شیخ جلال الدین کے چہرہ مبارک پر پڑی تو اس پہلی ملاقات ہی نے اس کے اندر کی کایا پلٹ دی۔ جب اس نے غور سے شیخ کا چہرہ دیکھا تو بولا کہ دین محمد علیہ السلام میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ پھر فوراً ایمان لے آیا۔ شیخ نے اس کا نام علی رکھا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو گھر گیا اور اسی وقت 1,00,000 جیتل شیخ کی خدمت میں لے کر آیا۔ شیخ نے انہیں قبول فرمایا اور بولے کہ اس ساری نقدی کی نگرانی تو ہی کر، جہاں میں کہوں وہاں خرچ کر دیجیو۔ پھر علل حساب اس نقدی میں سے ہر ایک کو عطا کرنا شروع کیا۔ کسی کے لیے 100 درہم کا حکم فرماتے، کسی کے لیے 50 درہم کا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، اور کسی کو کم بھی دلواتے تو 5 جیتل دلواتے۔ شیخ کا کم سے کم عطیہ 5 جیتل ہوتا، 5 جیتل سے کم کسی کے لیے حکم نہ فرماتے۔ آخرکار کچھ مدت میں یہ ساری رقم خرچ ہو گئی، صرف 1 درہم بچا۔ یہ علی کہتے تھے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس 1 درہم سے زیادہ نہیں بچا ہے، اور شیخ کی کم سے کم بخشش 5 درہم ہے۔ اگر کسی کو کچھ دینا چاہیں گے تو میں کیا کروں گا؟ اسی فکر میں تھے کہ کوئی مانگنے والا آیا اور سوال کیا۔ شیخ نے مجھ سے کہا اس کو 1 درہم دے دو۔ شیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ کے مناقب میں حکایت بیان فرمائی کہ جب انہوں نے بدایوں سے لکھنوتی یعنی بنگال کا ارادہ فرمایا تو یہ علی بھی ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ شیخ نے کہا تم واپس چلے جاؤ۔ علی بولے کہ میں کس کے پاس واپس جاؤں؟ میں کس کو جانوں؟ میرا آپ کے سوا اور ہے کون؟ کچھ دور چلنے کے بعد شیخ نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ، اور علی نے دوبارہ عرض کی کہ میرے پیر اور مخدوم تو آپ ہیں، آپ کے بغیر میں یہاں کیا کروں گا؟ شیخ بولے کہ واپس جاؤ، یہ شہر تمہاری حمایت میں ہے۔ پھر ایسے عبادت گزاروں کا ذکر آیا جو بڑے طاعت کرتے ہیں اور ان کے پاس باطن کا شغل اتنا نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوا کہ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں، بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کا ظاہر آراستہ ہے اور باطن خراب ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کا باطن آراستہ ہے اور ظاہر خراب ہے، اور بعض کا ظاہر باطن دونوں خراب ہیں، اور بعض کا ظاہر باطن دونوں آراستہ ہیں۔
وہ گروہ جس کا ظاہر آراستہ ہے اور باطن خراب، وہ ایسے عبادت گزاروں کی قوم سے ہیں جو طاعت بہت کرتے ہیں لیکن ان کا دل دنیا میں مشغول ہوتا ہے، اور وہ گروہ جن کا باطن آراستہ ہوتا ہے اور ظاہر خراب، ایسے دیوانے مجذوب ہیں کہ جو اندر سے مشغول بحق ہوتے ہیں اور ظاہر میں کوئی سر و سامان نہیں رکھتے، اور جس گروہ کا ظاہر و باطن خراب ہوتا ہے وہ عوام ہے، اور وہ گروہ جس کا ظاہر بھی آراستہ ہوتا ہے اور باطن بھی، وہ مشائخ ہیں۔ 15ویں مجلس اسی سال ماہ ربیع الاول کی 22ویں تاریخ جمعرات کو قدبوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ ارشاد ہوا کہ راہ حق میں جس لباس میں بھی ہوں داخل ہو جانا چاہیے، امید ہے کہ انجام درست ہو جائے گا۔ اسی معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کسی درویش کی نظر بادشاہ کی لڑکی پر پڑی، بادشاہ کی لڑکی بھی اس کی طرف مائل ہوئی اور دونوں کے درمیان معاشقہ پیدا ہو گیا۔ بادشاہ کی لڑکی نے کسی سے درویش کے پاس کہلوا بھیجا کہ تم درویش آدمی ہو، مجھ سے تمہارا ملنا سخت دشوار نظر آتا ہے، البتہ ایک طریقہ ہے، اگر یہ کر لو تو امید ہے کہ میں تم تک پہنچ جاؤں، اور وہ طریقہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک عبادت گزار آدمی بنا لو اور کسی مسجد کو ٹھکانہ بنا کر طاعت و عبادت میں لگ جاؤ۔ جب تمہاری شہرت زہد اور پارسائی سے ہو جائے گی تو میں اپنے باپ سے اجازت لے کر برکت حاصل کرنے کی رسم کے طور پر تمہاری زیارت کے لیے آ جاؤں گی۔ اس درویش نے اس اشارے کی بموجب ایسا ہی کیا، ایک مسجد کا پابند ہو گیا اور طاعت و خلوت میں لگا رہا۔ جب ذوق طاعت اس کو حاصل ہوا تو اس نے پوری طرح اپنا دل حق تعالی سے جوڑ لیا۔ اس کا چرچا لوگوں کی زبانوں پر عام ہو گیا اور بادشاہ کی بیٹی باپ سے اجازت لے کر اس کی زیارت کو آئی۔ جب وہ پہنچی تو اگرچہ کہ درویش بھی وہی تھا اور اس کا حسن و جمال بھی وہی تھا، لیکن اس لڑکی نے اس میں کسی قسم کی تحریک اور اپنی طرف جھکاؤ نہیں دیکھا، تو بولی کہ میں نے ہی تو تجھے یہ ترکیب سکھائی تھی، اب تجھے کیا ہو گیا ہے کہ میری طرف ذرا التفات نہیں کرتا؟ ہر چند اس بارے میں زور ڈال کر کہا، مگر درویش یہی کہتا رہا کہ تو ہے کون، میں تجھ کو کیا جانوں، میری تجھ سے کیا شناسائی۔ اسی طرح اس سے بے رخی برتتا رہا اور مشغول بحق ہو گیا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ ذوق مجسر آ جائے وہ غیر سے الفت کس طرح ظاہر کر سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ شیخ عبداللہ مبارک کو جوانی کے زمانے میں ایک عورت سے محبت تھی۔ ایک رات اس کی دیوار کے نیچے آئے ہوئے تھے اور اس عورت نے بھی کھڑکی سے سر باہر نکال رکھا تھا اور دونوں بات چیت اور راز و نیاز میں مشغول تھے۔ شروع رات سے آخر رات تک اسی طرح باہم گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح کی اذان کی آواز آئی۔ عبداللہ سمجھے کہ یہ نماز عشاء کی اذان ہے، جب غور سے دیکھا تو صبح ہو چکی تھی۔ اسی درمیان ایک ہاتف نے آواز دی کہ اے عبداللہ، ایک عورت کے عشق میں شروع رات سے آخر رات تک جاگتے رہے، کسی رات حق تعالیٰ کے لیے بھی اس طرح بیدار رہے ہو؟ عبداللہ نے یہ بات سنی تو اپنے اس کام سے توبہ کی اور پوری طرح مشغول بحق ہو گئے۔ ان کی توبہ کا سبب یہ بنا۔ اسی درمیان کھانا سامنے لگایا گیا، ایک شخص آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اس مناسبت سے خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شیخ ابو القاسم نصر آبادی، جو ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہم اجمعین کے پیر تھے اور اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھانے میں مشغول تھے، امام الحرمین جو امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، تشریف لائے اور سلام کیا۔ شیخ ابو القاسم اور ان کے مریدوں نے ان کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا۔ جب کھانا کھا چکے تو امام الحرمین نے کہا کہ کیا بات ہے، میں نے اندر آ کر سلام کیا اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شیخ ابو القاسم بولے کہ قاعدہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسے مجمع میں پہنچے جو کھانا کھانے میں مشغول ہو تو آنے والے کو چاہیے کہ سلام نہ کرے، بس آ کر بیٹھ جائے اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں اور ہاتھ دھو لیں اس وقت وہ کھڑا ہو اور سلام کرے۔ امام الحرمین نے کہا کہ یہ بات تم کس حوالے سے کہتے ہو، عقل سے یا نقل سے، یعنی قرآن و حدیث اور کسی کتابی حوالے سے؟ ابو القاسم نے جواب دیا
کہ आज़रुए अक्ल कहता हूं, क्योंकि जो भी खाना खाया जाता है वो तात की ताकत हासिल करने के लिए होता है। बस जो शख्स इस नीयत से खाने में मशगूल हो वो गोया ऐन तात के अमल में होता है। लिहाजा ऐसा शख्स जो तात में मशगूल हो, मसलन नमाज पढ़ रहा हो, अलैक सलैक किस तरह कर सकता है? हाजरीन में से किसी शख्स ने पूछा कि एक हिंदू है जो कलमा पढ़ता है और खुदा की वाहदानियत का कायल है और रसूल की रिसालत का भी, लेकिन जब मुसलमान लोग आते हैं तो चुप रहता है, अपने इस्लाम का इजहार नहीं करता, उसकी आकिबत कैसी होगी? ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया, उसका ये मामला हक ताला के साथ है। हक ताला उसके बारे में जो भी फैसला फरमाए, चाहे तो माफ फरमा दे, चाहे अज़ाब दे। इस बात की मुनासिबत से फरमाया कि बाज हिंदू साहिबान जानते हैं कि इस्लाम हक है मगर मुसलमान नहीं होते। यहां से हजरत अबू तालिब की हिकायत निकली। इरशाद फरमाया कि जब वो बीमार हुए तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम उनके करीब तशरीफ ले गए और फरमाया कि आप एक दफा हक ताला की वाहदानियत का इकरार कर लें, चाहे जुबान से चाहे सिद्के दिल से, ताकि मैं खुदा के सामने दलील के तौर पर अर्ज करूं कि इलाही वो ईमान ले आए थे। हर चंद रसूल अलैहिस्सलाम ने ये बात कही लेकिन कुछ असर न हुआ। इसी तरह कुफ्र की हालत में इंतकाल किया। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी इंतकाल की खबर रसूल अलैहिस्सलाम को इन अल्फाज में सुनाई, यानी आपके गुमराह चचा ने वफात पाई। इसके बाद रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्हें गुस्ल दें और कफन में लपेटें और बेलहद की कब्र खोदें और उनको ऊपर से कब्र में डाल दें, यानी रवाजी तदफीन ना हो। 16वीं मजलिस। उसी साल माह जमादियुल ऊला की 9वीं तारीख मंगल को कदम बोसी की दौलत हाथ आई। उस ग्रोह की हिकायत बयान फरमाई जो खराज और जजिया और खेती का लगान वसूल करने में खलकत पर ज्यादती करता है। इस दरमियान फरमाया कि अब से पहले लाहौर की हुदूद में एक गांव था। उस गांव में कोई दरवेश रहता था। वो खेती करता और उस रोजगार के जरिए गुजर बसर करता। कोई शख्स भी उससे कुछ न मांगता। फिर एक दफा कोई नया शखना यानी तहसीलदार या थानेदार मुकर्रर हुआ। उसने उस दरवेश से हिस्सा मांगना शुरू किया और कहा कि तुझे खेती करते इतने साल हो गए मगर जरा भी हिस्सा नहीं देता और गल्ला उठा कर ले जाता है। या तो गुज़िश्ता सालों का जजिया दे या कोई करामत दिखा। दरवेश बोला, करामत क्या होती है? मैं तो एक मस्कीन आदमी हूं। शखना ने जिद पकड़ ली कि तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, या तो इतने साल का लगान दे या कोई करामत दिखा, उस वक्त तुझे छोड़ूंगा। दरवेश जिद हो गया। आप ही आप कुछ सोचा, फिर शहना की तरफ रुख करके बोला कि तुम जो करामत चाहते हो बताओ। शायद इस गांव के पास नदी बहती थी। शहना बोला कि अगर तुम्हारे पास करामत है तो पानी पर चलो। दरवेश ने पानी पर कदम रखा और जिस तरह जमीन पर से गुजरते हैं गुजर गया। जब पार उतर गया तो मल्लाह से वापस आने के लिए कश्ती मांगी। उससे कहा गया कि जिस तरह गए थे इसी तरह वापस क्यों नहीं आ जाते? बोला, नहीं, इस तरह नफ्स मोटा हो जाएगा और ये गुमंड करेगा कि मैं भी कुछ हो गया हूं। फिर खाना खिलाने और जो कुछ मुयस्सर है उससे मेहमानों की खातिर तवाज़ो का जिक्र आया। इरशाद फरमाया कि हदीस है, जिसने किसी जिंदा की ज़ियारत की और उसके यहाँ की कोई चीज नहीं चखी तो ये ऐसा है जैसे उसने किसी मुर्दा की ज़ियारत की। यहां से शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत निकली कि उनके यहाँ ये मामला नहीं था। मखलूक उनके यहाँ आती जाती रहती, खाने की कोई चीज वहां ना होती। एक शख्स ने उनसे सवाल किया कि ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? शेख बोले कि हाँ। इस सवाल करने वाले ने कहा कि फिर आप इस हदीस पर अमल क्यों नहीं करते? शेख ने जवाब दिया कि लोग इस हदीस के मानी नहीं जानते। खल्क की दो किस्में हैं, अवाम है और खवास हैं। मुझे अवाम से कुछ काम नहीं, अलबत्ता खवास जब आते हैं तो मैं खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सलूक की बातें और इस तरह की दूसरी चीजें उनको बताता हूं और उनको फायदा होता है। इस बात की मुनासिबत से ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने जुबान मुबारक से फरमाया कि रसूल अलैहिस्सलाम के असहाब
जब हजरत रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो जरूर कुछ न कुछ खाते, फिर वापस जाते। रोटी या खजूर या दूसरी कोई चीज जब तक खा न लेते वापस न जाते। इसके बाद इरशाद फरमाया कि शेख बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का कायदा था कि अगर उनके पास कुछ भी ना होता तो कहते कि पानी ही पेश करते। यहां से शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र निकला। हिकायत बयान फरमाई कि एक साहिब थे जिन्हें अब्दुल्ला रूमी कहते थे। वो शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए और बोले कि मैं एक दफा शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी क़द्दसल्लाह सिर्रुल अजीज की खिदमत में था और मैंने समा किया था। शेख बहाउद्दीन ने कहा कि जब शेख शहाबुद्दीन ने समा सुना है तो जिक्रिया को भी सुनना चाहिए। फिर इन अब्दुल्ला साहिब को रात तक रोक लिया। जब रात हुई तो किसी से कहा कि अब्दुल्ला को हुजरे में ले जाओ और उनके एक संगति को भी, इस तरह के तीसरा कोई ना हो, बस इन्हीं दो को हुजरे में ले जाना। अब्दुल्ला कहते हैं कि ऐसा ही किया गया। मुझको और मेरे एक साथी को हुजरे में ले जाया गया। जब रात हो गई और इशा की नमाज पढ़ी जा चुकी और शेख औरात से फारिग होकर हुजरे में तशरीफ ले आए तो बस अकेले हम दोनों थे और शेख, और कोई नहीं था। शेख बैठ गए और फिर औरात में मशगूल हो गए। आधे सिपारे के करीब तिलावत की। इसके बाद हुजरे के दरवाजे में कुंडी लगा दी और मुझसे कहा कि कुछ कहो। मैंने समा शुरू किया। कुछ देर बाद शेख में जुम्बश और हरकत पैदा हुई। शेख खड़े हो गए और चिराग बुझा दिया। हुजरे में अंधेरा हो गया। हम इसी तरह गाते रहे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शेख रक्स कर रहे हैं और जब मेरे पास आते हैं तो उनका दामन नजर आता है और बस इतना पता चलता है कि शेख जुम्बश और हरकत में है। लेकिन हुजरा चूंकि तारीक था इसलिए ये पता नहीं चलता था कि ताल पर यह जुम्बश और हरकत है या बेताल। अलगर्ज जब समा हो चुका तो शेख ने दरवाजा खोल दिया और अपनी जगह तशरीफ ले गए। मैं और मेरा संगत करने वाला साथी वहीं बैठे रहे। ना हमें खाना दिया गया ना शरबत, यहां तक कि रात गुजर गई और दिन निकल आया। जब दिन निकला तो कोई खादिम आया और एक महीन कपड़ा और 20 दिन के सिक्का लेकर आया जो मुझे दिए और कहा कि शेख ने भिजवाए हैं, ये लो और वापस सुधारो। ये हिकायत बयान फरमाने के बाद ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि यही अब्दुल्ला शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाह सिर्रुल अजीज की खिदमत में आए और ये किस्सा सुनाया। कुछ अरसे बाद इन अब्दुल्ला ने फिर मुल्तान जाने का इरादा किया। शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन नूरुल्लाह मरकदाहू की खिदमत में आकर अर्ज गुजार हुए कि मेरा इरादा मुल्तान जाने का है और रास्ते में बड़ा खतरा है, दुआ फरमाइए कि मैं सलामती से मुल्तान पहुंचूं। शेख ने फरमाया कि यहां से फलां जगह तक जो इतने कोस है और जहां तालाब वाक़या है मेरी हद है, वहां तक सलामती से पहुंचोगे और वहां से मुल्तान तक शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का इलाका यानी अमलदारी है। ये अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने ये बात शेख से सुनी और रवाना हुआ और मज़कूरा तालाब के करीब पहुंच गया। बताया गया कि वहां एक धाड़ यानी लूट मार करने वाले यानी हमलावर आ रही है, यानी राहजनों ने हमले की तैयारी कर रखी है। मुझे शेख की बात याद आ गई। बेखटके चलता चला गया। हक ताला ने उन राहजनों को उस रास्ते से दूर जा डाला और वो रास्ता भूल गए। मैं सलामती से उस तालाब तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर वुजू किया और 2 रकत नमाज पढ़ी। इसके बाद हजरत शेख बहाउद्दीन को याद किया और कहा कि जहां तक शेख फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाह सिर्रुल अजीज की हद थी सलामती से आ गया हूं। यहां से मुल्तान तक आपकी हद है, अब आप जाने। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं उस तालाब से रवाना हो गया। मुझे कुछ गजंद नहीं पहुंचा और सलामती के साथ मुल्तान आ गया। जब शेख बहाउद्दीन क़द्दसल्लाह सिर्रुल अजीज की खिदमत में पहुंचा तो एक गलीम यानी कमली ओढ़े हुए था। जब शेख ने मुझे गलीम ओढ़े देखा तो नाराज हो गए और कहने लगे कि ये क्या ओढ़ रखा है, ये शैतान का लिबास है। इस तरह की बातें करते रहे। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा कि अगर मैंने गलीम ओढ़ ली तो क्या गजब हो गया। लोगों के पास जो इस कदर सोना चांदी दौलत और जखीरा है, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कहता। अगर मेरे पास गलीम है तो इस पर इतना कहना सुनना क्यों। शेख ने जब देखा कि मैं यकाशक आपे से बाहर हो गया हूं तो मुझसे मुखातिब होकर बोले,
इतनी जुबान क्यों चलाते हो? वो तालाब के किनारे वाली बात तो याद करो। जिक्रिया ने तुम्हारे बारे में आखिर क्या कमी की, यानी हिफाजत से पहुंचा दिया। सत्रहवीं मजलिस। उसी साल माह जमादियुल आखिर की 16वीं तारीख बुध को कदम बोसी की दौलत हासिल हुई। गुस्से और शहवत का जिक्र निकला। इरशाद हुआ कि जिस तरह शहवत बेमौका हराम है, गुस्सा भी बेमौका हराम है। उसके बाद फरमाया कि एक आदमी दूसरे पर गुस्सा करता है और वो बर्दाश्त कर लेता है तो खूबी उस शख्स को हासिल होती है जो बर्दाश्त कर लेता है, उस शख्स को नहीं जो गुस्सा करता है। फिर इस बात का जिक्र आया कि अगर कोई शख्स किसी को नसीहत करता है तो उसको चाहिए कि सबके सामने ना करे। ये फजीहत यानी रुसवाई हो जाती है। मलामत और नसीहत जो भी करनी हो वो अकेले में करे, सबके सामने नहीं। इस मौका पर हिकायत बयान फरमाई कि एक दफा अबू यूसुफ काजी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे और मुरीदों को सबक इमला करा रहे थे। सर पर सूफियाना कुलाह थी और वो कुलाह सफेद नहीं थी, स्याह थी, और लातिया नहीं थी, नाशिदा थी। लातिया वो होती है जो सर से चिपकी हुई होती है और नाशिदा वो होती है जो सर से किसी कदर बुलंद उठी होती है। अलगर्स उस दौरान एक शख्स आया और अबू यूसुफ काजी से सवाल किया कि क्या पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस किस्म की कुलाह सर पर रखी है? अबू यूसुफ बोले कि हाँ। फिर उस साइल ने पूछा कि सफेद टोपी पहनी है या काली? अबू यूसुफ ने जवाब दिया कि सफेद। उस सवाल करने वाले ने फिर पूछा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सर पर लातिया कुलाह पहनी है या नाशिजा? अबू यूसुफ ने कहा कि लातिया। साइल ने कहा कि तुमने स्याह और नाशिदा कुलाह सर पर रखी है। इस सूरत में तुमने दो तरह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अमल किया है और इमाली जो उनकी हदीसें हैं उनको किस तरह इमला करा रहे हो? अबू यूसुफ काजी को बड़ी अजियत हुई। उस सवाल करने वाले से कहने लगे कि जो बात तुमने मुझसे कही है वो दो हाल से खाली नहीं है, या तो तुमने बराए हक कही है या मुझे इज़ा पहुंचाने के लिए कही है। अगर बराए हक कही है तो चूंकि तुमने सबके सामने उसे कहा है इसलिए तुम्हें इससे कोई सवाब नहीं मिलेगा, और अगर मुझे इज़ा देने के लिए कही है तो तुम पर अफसोस है, तुम पर अफसोस है, तुम पर अफसोस है। 18वीं मजलिस। उसी साल माह रजब की 7वीं तारीख बुध को कदम बोसी की दौलत हाथ आई। तौबा का जिक्र निकला। इरशाद हुआ कि तौबा की 3 किस्में हैं, हाल, माजी और मुस्तकबिल। हाल तो यह है कि पशेमान हो, यानी जो गुनाह किया है उस पर निदामत जाहिर करे। माजी ये कि दुश्मनों को खुश करे, और अगर किसी ने किसी के 10 दिरहम गसब किए हैं और सिर्फ इतना कहता है कि तौबा तौबा, तो ये तौबा नहीं होगी। तौबा तो ये होगी कि 10 दिरहम उसको वापस दे दे और उसको खुश कर दे, उस वक्त उसकी तौबा तौबा होगी। और अगर किसी को बुरा कहा है तो उसके पास जाए और माजरत करे और उससे माफी चाहे और उसको राजी करे। और अगर जिस शख्स को बुरा कहा है और वो मर चुका है तो क्या करे? ये कि जिस कदर उसको उसकी जिंदगी में बुरा कहा था उसके मरने के बाद उसको उतना ही अच्छा कहे और उसको भलाई के साथ याद करे। और अगर किसी को कत्ल कर दिया हो और उसका कोई वली नहीं है तो फिर क्या करे? गुलाम आजाद करे, यानी मुर्दे को जिंदा तो कर नहीं सकते, इसलिए गुलाम आजाद करे। जो शख्स गुलाम को आजाद करता है वो ऐसा है जैसे मुर्दा को जिंदा किया। और अगर किसी ने गैर की बनकूहा या ममलूका के साथ जना किया था वो क्या करे? उसके बारे में किसी जगह ये हुक्म नहीं है कि शौहर और मालिक के पास जाकर माजरत करे। फिर क्या करे? खुदा की तरफ रुजू हो। इसी मानी की मुनासिबत से फरमाया कि शराब पीने वाला शराब से तौबा करे तो फिर क्या करे? लतीफ शरबत और ठंडा पानी खुदा की मखलूक को पिलाए। इस बात का मकसद ये है कि तौबा के बारे में माजरत करना हर गुनाह की मुनासिबत ही से आया है। दूसरी तौबा की कैफियत जो माजी की किस्म से थी वही थी जिसको लिखा जा चुका। तौबा की तीसरी किस्म जो मुस्तकबिल की सिफ्त रखती है ये है कि नीयत करे कि जो गुनाह किया था आइंदा नहीं करेगा। फिर ये हिकायत बयान फरमाई कि जब मैं शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रल अजीज से वाबस्ता हुआ
और तौबा की तो चंद बार जुबान मुबारक से यही फरमाया कि दुश्मनों को खुश करना चाहिए और हकदार लोगों की खुशनुदी हासिल करने के सिलसिले में गुलू फरमाया। मुझे याद आया कि मुझे किसी के 20 जेतल उधार देने हैं और एक किताब किसी से आरजी तौर पर मांग कर ली थी और वो किताब मेरे पास से गुम हो गई थी। जिस वक्त शेख कबीर नूरुल्लाह बरकदाहू ने दुश्मनों को खुश करने के सिलसिले में ताकीद से जिक्र फरमाया, मैं समझ गया कि मखदूम छुपी हुई बातों से वाकफियत रखने वाले हैं। दिल में ठान ली कि अब के दिल्ली जाऊंगा तो उन लोगों को खुश करूंगा। जब अजोदन से दिल्ली आया तो जिस शख्स के 20 जेतल देने थे वो बजाज यानी कपड़े वाला था। उससे मैंने कपड़ा लिया था, मगर किसी वक्त भी 20 जेतल इकट्ठे जमा नहीं होते थे कि उसको पहुंचाऊं। तंग दस्ती का आलिम था, कभी 5 जेतल हाथ आते, कभी 10। एक दफा ऐसा हुआ कि 10 जेतल हाथ आए। मैंने उस बजाज के घर पर आकर आवाज दी। वो घर से बाहर आया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे 20 जेतल मेरे जिम्मे हैं। उसका मौका ही नहीं होता कि यकमुश्त अदा करूं। ये 10 जेतल लाया हूं, ये ले लो, बाकी भी इंशाअल्लाह ताला पहुंचा दूंगा। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो बोला कि अच्छा, शेख के पास से आ रहे हो। फिर वो 10 जेतल मुझसे ले लिए और कहने लगा कि बाकी के 10 जेतल मैंने तुम्हें बख्शे। इसके बाद मैं उस शख्स के पास गया जिससे किताब लाया था। जब उससे मिला तो ये पूछने लगा कि तुम कौन हो। मैंने कहा, ऐ ख्वाजा, मैं एक किताब तुमसे आरायतन ले गया था, वो मेरे पास से गुम हो गई है। अब मैं उसकी ऐसी ही कॉपी हासिल करूंगा जैसी तुम्हारी किताब थी। दूसरी किताब नकल कराकर तुम्हें पहुंचा दूंगा। जब उस शख्स ने यह बात सुनी तो बोला कि जी हां, जहां से आप आ रहे हैं ये उसी का फल है। उसके बाद कहने लगा कि मैंने वो किताब आपको बख्शी। तौबा की मुनासबत ही से ये फवायद बयान फरमाए कि जो शख्स गुनाह करता है उसका चेहरा नाफरमानी की तरफ होता है और पुश्त हक की तरफ। जब तौबा करता है और खुदा से रुजू होता है तो चाहिए कि उसकी पुश्त नाफरमानी की तरफ हो और मुंह हक की जानिब। फिर फरमाया, जो ताइब हो गया है उसको तायत में पूरा ज़ौक हासिल होना चाहिए और जो नाफरमानी की तरफ लौट जाता है तो उससे अल्लाह की पनाह कि वो तात में ज़ौक ही नहीं पाता। फिर खर्च करने का जिक्र निकला। इरशाद हुआ कि अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स 1 दिरहम अपने साथियों पर खर्च करे तो ये इससे बेहतर है कि 10 दिरहम फकीरों को दे दे। इसी तरह अगर 10 दिरहम अपने रफीकों के लिए खर्च करे तो ये इससे बेहतर है कि 100 दिरहम फकीरों को दे। और अगर 100 दिरहम अपने रफीकों के साथ खर्च करे तो ये ऐसा होगा जैसे एक गुलाम आजाद कर दिया। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहां आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।